Okay, is everyone ready? क्या सब लोग तैयार हैं? Okay, if you're ready, then you need to be quiet. अगर आप तैयार हैं तो आप शांत होने की जरूरत है. Yeah, okay. Right. So, I think, yeah, you have a question? Right, okay. Yeah, okay. So I've heard in churches that when people speak tongues, so it's different. So different people speak different words. Okay. How is that interpreted? Yeah. So different people speak different words. Yeah, the words are different. Okay. Yeah. So if Okay. someone who's interpreting it, Uh-huh. so I'm not able to understand that. Yeah. Like how can they interpret different words? Hmm. Because it's not the same is what I hear. Like Okay. if I speak in English to you, you can understand and she can also understand it. Correct. Correct. But tongues is not that way. It's different. Yeah. So the thing is, yeah. So yeah. तो यहाँ पर एक प्रश्न आया है कि अगर हम अनुवाद की बात करते हैं तो कलीसिया में अगर अलग अलग लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं तो अनुवाद करने वाला उनके अलग अलग शब्दों का अनुवाद कैसे करेगा. जैसे कि हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं तो सबको एक तरह से समझ आती है जो अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन अन्य भाषा में सब अलग अलग शब्द निकाल रहे हैं, तो अनुवाद करने वाला उन शब्दों को अलग अलग एक ही अनुवाद कैसे कर सकता है. Right. First of all, interpretation is something that is imparted or transferred. Just one second. तो तेरे पास सारे ना तो बड़ी मम्मी बोली ना. So it is something that is transferred to our spirit by the Holy Spirit, right? So yeah. So तो सबसे पहली बात यह है कि जब अनुवाद की हम बात करते हैं तो हम वही अनुवाद कर सकते हैं जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाल रहा है अनुवाद. so it need not be a word for word translation. तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर हम जो शब्द बोले जा रहे हैं उन शब्दों को पकड़ पकड़ कर उसका अनुवाद करें. And that's why, we also saw that it need not depend on the length of what is being spoken in tongues. It need not be the same. The interpretation need not be the same length as what it was spoken in tongues. Right. अगर हम वहां पर बात करें तो वहां पर ये जरूरी नहीं है कि जो अन्य भाषा बोली जा रही है वो हो सकता है कि बहुत लंबा एक वाक्य हो और अनुवाद छोटा हो, तो हम उसकी लंबाई और चौड़ाई के ऊपर भी अनुवाद को नहीं निर्भर कर सकते हैं. Right. So which means that whoever's praying in tongues and whoever's interpreting, it could be the same person, it could be the other person. Now they are not going to be thinking about the words or focusing on what word was spoken, what was said. That is not going to be their focus. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, हो सकता है कि वो खुद ही अनुवाद कर रहा हो या अनुवाद करने वाला जब पास में खड़ा हो तो वो इस बात पर ध्यान नहीं देगा कि क्या शब्द बोले जा रहे हैं और उसका क्या अनुवाद हो रहा है, लेकिन वो संदेश क्या आ रहा है उसमें से, उस संदेश के ऊपर वो लोग ध्यान केंद्रित करते हुए उसका अनुवाद करेंगे और हमें वो संदेश बताएंगे. Yeah. So that's the thing. So the focus is on what is God putting in my heart right now. तो खास जो केंद्र बिंदु वो क्या है कि परमेश्वर उस बात के बारे में दिल के अंदर क्या विचार डाल रहा है. Yeah. Okay. You had a question? Yeah. Yes, sir. My question is, what is the difference between singing and speaking in tongues? I sing and I speak. So that's the difference. Okay. तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया कि अन्य भाषा में गीत गाना या अन्य भाषा में प्रार्थना करना, इन दोनों में क्या अंतर है. See, in both singing and speaking, we are expressing something. और दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं, अपना अभिव्यक्ति दे रहे हैं. But in singing, there's melody to it, right? और जब हम गाते हैं तो उसके अंदर सुर मिल जाते हैं. There is a tune. और वहां पे हम सुर ताल के साथ उसको अन्य भाषा को गीत की तरह गाने लग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वाक्य की तरह बोलते हैं. Right. And both have certain dynamics. You can shout and speak. You can also shout and sing. You can sing softly. You can speak softly as well. तो उनमें हम देख सकते हैं कि कोई बहुत जोर जोर से शोर मचाते हुए चिल्लाते हुए भी गीत गा सकता है और कोई साधारण तरीका शांत तरीके से भी गीत गा सकता है, प्रार्थना कर सकता है अन्य भाषा में. But have you thought about it? Why is there singing? Why melody and singing?
तो कभी हमने ऐसा सोचा है कि क्यों गीत भी गाते हैं और वो क्यों आत्मिक भजन की बात वहां पे लिखी गई है? Right? Singing involves our emotion. जो गीत गाना है उसमें हमारी भावनाएं व्यक्त होती हैं। Okay? We are emotionally moved and involved when we sing. जब हम भावनात्मक रूप से अंदर कुछ महसूस करते हैं, वो कोई कंपन होता है, तब हम गीत गाने के लिए प्रेरित होते हैं। And to a greater degree than when we are speaking. जब हम मात्र बोल रहे होते हैं प्रार्थना को शब्दों में, उससे अधिक जब हमारे अंदर एक उत्साह आ जाता है और हमारे अंदर एक परमेश्वर का कंपन आता है, तब हम क्या करते हैं? गीत गाने लग जाते हैं अन्य भाषा And में। also when we sing, we are actually opening up more of ourselves and surrendering, yielding more of ourselves when we sing actually. तो जब हम गीत गाने लग जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को और ज्यादा खोल रहे हैं परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा समर्पण में लेकर जा रहे होते हैं। And music does that to us. और यही संगीत हमारे लिए काम करता है। And that's why when we go to a departmental store or a mall, they have some nice music playing everywhere. तो जब हम किसी दुकान में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ बड़े अच्छा एक म्यूजिक चल रहा होता है, Right. संगीत चल रहा And so होता you're है। listening to the music and then you're saying, hey, this feels nice. और जब हम वहाँ जाके उस संगीत को सुनते हैं तो हमारे क्या लगता है? हमें अच्छा लगने लग जाता है, हमारा मन प्रसन्नचित महसूस करता है। And your defenses are down. और क्या होता है कि आपके जो बाड़े हैं वो थोड़े से नीचे आ You जाते are हैं। more emotionally involved. आपका जो सुरक्षा का बाड़ा है वो नीचे आता है और आप और ज्यादा भावनात्मक महसूस करने लग जाते And हैं। you're looking at that shirt that you want to buy or that salwar that you want to buy and say, hey, I think I like it. I'll buy it. It doesn't matter if it's too pricey. I'll still buy it. तो आप क्या करते हैं कि वहां पर जब बाजार में उस संगीत को सुनते सुनते घूम रहे होते हैं और आपको भावनात्मक रूप से अच्छा लग रहा होता है, तो वहां कोई शर्ट हो, कोई सलवार कुर्ता हो, आपको वो अच्छा लगने लगता है और आप कहते हैं हाँ मैं तो ये खरीद ही लूंगी, चाहे वो थोड़ा महंगा भी हो तो भी आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते So हैं। the people in the departmental stores and malls, they know that. तो जो लोग यहाँ पे मॉल के अंदर और दुकानों के अंदर काम करते हैं, उन्हें ये बात पता होती है। But the Lord does that for our good, right? It's not for that He wants to take something from us, but He wants to bring something into us. लेकिन परमेश्वर जब हमें संगीत देता है, अन्य भाषा में गीत गाने को देता है, वो हमारी भलाई के लिए देता है, हमें हमारा कोई फायदा उठाने के लिए। दुकान वाले क्या करते हैं? हमारा फायदा उठाने के लिए वो संगीत बताए, पर परमेश्वर हमारा फायदा उठाने के लिए ना, हमें उन्नति देने के लिए कार्य करता है, So that we can be yielded and surrendered to Him. ताकि हम और अधिक परमेश्वर के प्रति समर्पित और अधिक परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। Okay. Okay. Any other questions? Yeah. हाँ जी। Yeah. Yeah. Okay. So and I said, okay. Yeah. तो ये एक प्रश्न है कि अगर हम ये कहते हैं कि ये जो अन्य भाषा, इसे हम कहीं शिक्षा प्राप्त करके नहीं सीख सकते हैं, लेकिन इसको अभ्यास भी करते रहना है, तो इन दोनों बातों को हम एक साथ कैसे समझ सकते हैं? Right. So when I said we need to pray more in tongues, speak more in tongues, तो जब हम ये कहते हैं कि हमें और अधिक अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करने का अभ्यास करते रहना I है, also said that when you're praying in tongues, you be aware of what God is revealing to your spiritual senses, right? तो इस प्रार्थना के दौरान हमें क्या करना है? अपनी आत्मा को सचेत रखना है, संवेदनशील रखना है कि परमेश्वर इस समय मुझसे क्या बात कर रहे हैं, वो सुनने के लिए तैयार रहना है। In other words, we are learning to be sensitive to what God is, what the Holy Spirit is revealing to our spiritual senses. तो सच पूछे तो हम जो काम कर रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय, हम ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम और ज्यादा परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। Right? So that's the learning and that's the exercise. तो यही हमारी शिक्षा भी है और यही हमारा अभ्यास भी है, Which is what Hebrews chapter 5 and verse 14 says. और यही इब्रानियों उसके 5:14 में लिखा Right? है। You're having your senses exercised to discern. और वहां पे लिखा है आपकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते क्या हो गई हैं? सिद्ध हो गई हैं, वो समझने लग गई हैं, परखने लग गई हैं। So that's the learning. तो यही है वो शिक्षा जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। Anyone else? और कोई प्रश्न है किसी के पास Okay. अन्य भाषा के अनुवाद के विषय में?
Right? Okay, so let's look at prophecy then. तो हम अगले अध्याय में जाएंगे जो है अध्याय 9 भविष्यवाणी। Right? So if you're following the English book, it's chapter 9. अगर आप अंग्रेजी की किताब को फॉलो कर रहे हैं तो हम लेसन 9 में जाएंगे। And if you have the notes, Hindi notes, और अगर आपके पास हिंदी के नोट्स हैं you can check in under gifts of the Spirit. Prophecy is listed there. तो वहां पर आप पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में जहां लिखा हुआ है वहां उस Which page is it? Chapter 10 or something, is it? It's chapter 11 in the Hindi notes. Right? हिंदी नोट्स में ये अध्याय 11 है। Okay, so let's look at prophecy. What is prophecy? तो आइए हम देखते हैं कि भविष्यवाणी क्या है। Okay, it's God speaking to someone, for someone, or through someone, right? तो भविष्यवाणी का मतलब ये है कि परमेश्वर बात कर रहा है किसी के लिए या किसी से बात कर रहा है। So, which means that it's an inspired message. That- ये एक प्रेरणा वाला संदेश है Right? It's different from preaching. और ये प्रचार से अलग है। Like it can happen on the spur of the moment, or it can happen much earlier also. ये ऐसा हो सकता है कि भविष्यवाणी का वरदान उसी समय काम में लिया जा सकता है या कभी-कभी it can be It can be like, for example, it can be few days prior also to the meeting. I'm just talking about a meeting. तो अगर हम किसी सभा के बारे में बात करें तो कुछ समय पहले भी आ सकता है और कभी-कभी उसी समय भी ये भविष्यवाणी का वरदान प्रभु दे सकता है। But it's different from preaching, right? लेकिन ये प्रचार से अलग है। Because preaching, you prepare, you pray, and you speak. But prophecy is you receive an inspired message. तो अगर हम प्रचार की बात करें तो प्रचार के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तैयारी करनी पड़ती है पहले से और उसको तैयार करके बोलना पड़ता है। लेकिन अगर हम भविष्यवाणी की बात करें तो ये परमेश्वर की प्रेरणा से मिलने वाला एक संदेश होता है जो हम पहले से तैयार करके नहीं ला सकते, उसी समय हमें मिलता है जब हमें देना होता है। So preaching can also be prophetic preaching. पर प्रचार भविष्य वाणी के द्वारा प्रेरित हो सकता है। Okay, so let's look at 1 Corinthians 14 and verse 3. अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसकी 3री आयत को देखें, So when he's contrasting between gift of tongues and gift of prophecy, he's saying that those who prophesy, or he who prophesies, speaks edification, exhortation, and comfort to men. तो जब हम यहाँ पर भविष्यवाणी की वरदान के बारे में बात कर रहे हैं तो पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि जो भविष्यवाणी है करता है वो मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। So it's an inspired message or an inspired communication. तो ये एक प्रेरणादायक संदेश होता है। Okay, but it builds up the person. और वो जो प्रेरणा से मिला हुआ संदेश है वो अगले व्यक्ति की उन्नति करता है, Or it comforts the person, या उसे शांति देता है, or it encourages the person. और उसको उत्साह बढ़ाता है। Now, prophecy could involve other things also, like foretelling the future aspect of it. अब भविष्यवाणी का एक और जो हम तरीका देखते हैं वो क्या हो सकता है कि आने वाले समय के बारे में बताने के विषय में भी हम भविष्यवाणी को देख सकते हैं। Right, which means it's predicting something. जो कोई घटना होने वाली है उसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी के द्वारा कभी-कभी बताया जाता Right? है। In the book of Acts, we read about prophet Agabus who foretold, who predicted that there will be a famine in the land. तो हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में अगबुस के बारे में पढ़ते हैं कि उसको ये भविष्यवाणी मिली थी कि आने वाले समय में वहां पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है। Prophecy might also include correction, like how prophet Nathan corrected David. और भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा चेतावनी भी आ सकती है, जिस प्रकार से नाथान नबी ने दाऊद को चेतावनी जाकर दी। And prophecy could also mean direction. और जो भविष्यवाणी है वो मार्गदर्शन का काम भी कर सकती है कि आपको किस ओर जाना है। Right. For example, prophet Samuel prophesied over King Saul. He was not yet king then. जिस प्रकार से हम देखते हैं कि शमूएल भविष्यवक्ता ने शाऊल के ऊपर एक भविष्यवाणी की थी, जब तक वो राजा नहीं बना था उससे कई समय पहले ही उसको बोल दिया था इस विषय में। Right? He said, you will go to this place and you will see some prophets coming down the mountain, and along with that you will also start prophesying.
और उन्होंने उसको बताया कि तुम एक पहाड़ पर जाओगे, वहां तुम नबियों से मिलोगे और इस प्रकार से तुम्हारे जीवन में कुछ घटना होने वाली है। Like he was giving Saul some directions. और वो क्या कर रहा था? शाऊल को मार्गदर्शन दे रहा था, उसको कुछ निर्देश दे रहा था। And also he said to Saul, by the way, Saul, the donkeys that you are searching for, they are already found. और उसको ये भी बताया कि जिन गधों को ढूंढने के लिए तुम निकले हो वो मिल चुके हैं। Right? So it was a revelation, something that was hidden. It was actually revealed to Saul. तो ये एक तरह का प्रकाशन था कि जो भेद छिपा हुआ था उन गधों के बारे में, वो यहाँ पर प्रकट हुआ और शमूएल ने उस बात को बताया। So we see that prophecy involves all these things. तो हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी है वो इन सब बातों को मिलकर बनती है। Right? So we should not say, hey, this person is not telling anything about my future, so it is not prophecy. No, it's wrong. तो अगर हम कभी-कभी ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ये मेरे भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता रहा, इसका मतलब ये भविष्यवाणी नहीं है या सही नहीं है, तो ये गलत होगा। Okay, because prophecy involves even encouragement. क्योंकि भविष्यवाणी जो है वो उन्नति भी करने का एक जरिया है। But encouragement based on the message that is given by the Holy Spirit. लेकिन ये उन्नति कैसे होती है? पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले संदेश से जो उन्नति हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। So a person prophesies when the person is moved by the Holy Spirit or conveyed by the Holy Spirit. और ये व्यक्ति जो भविष्यवाणी कर रहा है, ये कैसे कर रहा है? ये पवित्र आत्मा की सामर्थ और प्रेरणा में होकर भविष्यवाणी कर रहा है। Okay. So that's why the entire scripture, the Bible, is actually prophetic in nature. तो अगर हम देखें तो पूरा पवित्र शास्त्र जो है वो स्वभाव से कैसा है? भविष्यवाणी से भरा हुआ है। Right? Because it is inspired by the Holy Spirit. क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। Because it says in 2 Timothy chapter 3 and verse 16, अगर हम दूसरा तिमोथी 3:16 देखें तो it says that all scripture is given by inspiration of God. तो वहां लिखा है कि सारा पवित्र शास्त्र कैसे लिखा गया है? परमेश्वर की संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। Right? So it is given by the inspiration of the Holy Spirit. तो ये परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। And the same thing we read in 2 Peter chapter 1. और अगर हम दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय में भी देखें, And if you look at verse 16, और उसके हम 16 onwards. दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसकी 16 आयत, Yeah, maybe we should look at verse 21, sorry. और हम उसकी जगह हम 21वें पद को देखें तो It says that prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। So moved meaning you are inspired to act something. तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेरणा से इस बात को बोल पाते हैं। There is an encouragement, there is a prompting to say something and to convey something, and that's prophecy. तो ये प्रेरणा से ऐसा होता है कि वो संदेश उन्हें मिलता है और वो दूसरे को वो संदेश दे पाते हैं, तब वहां पर परमेश्वर का काम होता है। Right? So the Old Testament is full of prophecies. तो सारा जो पुराना नियम है वो परमेश्वर की भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। Okay, can you remember any prophet or can you name any prophet and their prophecy in the Old Testament? क्या आप में से कोई किसी एक भविष्यवक्ता का नाम और उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में बता सकते हैं पुराने नियम में? Okay, just put your hand up. Also online students, if you आप recall, हाथ you उठा can put- सकते हैं और आप बता सकते हैं कोई भी एक भविष्यवक्ता और उसकी एक भविष्यवाणी। Huh? हाथ उठाइए, एक बार हाथ उठाइए, फिर Okay. एक जना बोलिए। Elijah. Noah. No, what did they prophesy? So what did Elijah prophesy? You have to tell the name of the prophet and the prophecy. Anything that एक prophesied? प्रॉफिट का नाम बताना है, एक भविष्यवक्ता का नाम बताना है और उसने क्या भविष्यवाणी की ये बताना है। Okay. Correct. Prophet Isaiah spoke about the Messiah, meaning the Lord Jesus. यशायाह ने हमारे मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणी की, हम उसकी बात कर रहे हैं। Like several places. बहुत अलग अलग जगहों पे हमें वो भविष्यवाणी मिलती है। हाँ.
Elisha? Yes. Ah. Elijah prophesied that for 3 years there will be no rain. Okay, right. So Samuel about David. Samuel about David, Noah about flood. David will be Noah king. about the flood. Okay. Okay. Daniel about the end times. Yes. Right. What? क्या बोल रहे हैं आप बताना सुन के? என்ன சொல்லுங்க யாரு Balaam. Okay, correct. Yeah, Balaam was a prophet, and we see some here. Nathan, the temple will be king, right? King Solomon. Yes. Okay. Isaiah and Luke chapter 4. What is that, Dr. Mary? Luke chapter 4, Isaiah. What is that reference? So I just I remember that Oh yeah, correct. Isaiah 6. Yeah, you're right. Isaiah 61 and Luke chapter 4 verse 18. Yes, Yeah, Lord yes. Jesus. Right. Okay, thank तो you. यशाया में जो भविष्यवाणी हुई वो लूका के 4थे अध्याय में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु का आत्मा उस पर उतरेगा और वो क्या क्या कार्य करेगा उस आत्मा के अभिषेक Right. में. So we see that in the Old Testament, a lot of these people, they prophesied. Some of them are yet to, be fulfilled on the earth. Right. तो अगर हम देखें तो पुराने नियम में बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई हैं और उनमें से अभी भी कुछ का पूरा होना बाकी है. Okay. Like we read about Daniel and even prophet Isaiah. जैसा कि अभी हमने दानियल के बारे में पढ़ा, यशाया भविष्यवक्ता के बारे में भी Okay. हमने पढ़ा. Okay. Quickly, there is one question. Is it important to take baptism for the gifts of the Holy Spirit? Yeah, not necessary. Like if you're taking baptism, I guess you're talking about water baptism, right? So like we saw in Cornelius' house, or even the case of Saul, it is not necessary. It does not qualify us for the gifts of the Spirit. But we take water baptism because, be quiet, please. Listen. कृपया शांत रहिए उस तरफ. So we do obey the Lord's instruction, and that is why we take water baptism, and it signifies the death, burial, and resurrection of the Lord, right? So that is why we do that. तो यहाँ एक प्रश्न आया है कि क्या बपतिस्मा पाने के बाद ही हमें पवित्र आत्मा के वरदान मिलते हैं? तो ऐसा नहीं है. बपतिस्मा जो हम लेते हैं वो हम अंगीकार करते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर ने काम किया है और हम उसका एक बाहरी प्रदर्शन कर रहे हैं. Okay, so I think we answered the question. Right. So let's look at the New Testament now. तो आइए अब हम नए नियम की ओर जाएंगे. Okay. In the New Testament, we see some prophecies before the birth of the Lord Jesus. और कुछ हम ऐसी भविष्यवाणियां देखते हैं जो यीशु मसीह के पैदाइश से पहले हुई थी. Right. We learned this in the Holy Spirit class. और ये हमने पवित्र आत्मा के व्यक्ति के वाली कक्षा के अंदर पढ़ा था. We see Mary's relative Elizabeth. She was filled with the Holy Spirit and she started prophesying. और वहां पर हमने पढ़ा था कि मरियम की एक रिश्तेदार थी एलिशिबा और कैसे वो आत्मा से भर गई और उसने भविष्यवाणी की. Right? And what did she prophesy? और उसने क्या भविष्यवाणी की? She said, what is it that the mother of my Lord should come and meet with me? और उसने क्या भविष्यवाणी की? उसने कहा कि मेरे the mother of my Lord, she says. Yes. You can look at Luke chapter 1 and verse 14, I think, or 141. Luke chapter 1 verse 41. एलिशिबा ने जैसे ही मेरी मरियम को देखा उसने कहा कि जैसे ही त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और उसने कहा कि मेरे Verse प्रभु की 43. माता मेरे पास आई है. Why is it granted to me that the mother of my Lord should come to me? So this was information which was inspired by the Holy Spirit to Elizabeth. तो ये वो जानकारी थी जो एलिशिबा को किससे मिली थी? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मिली थी. Right? And she goes on to say that the babe in her womb, which is John the Baptist, leaped for joy as soon as Mary greeted her.
और उसने ये भी कहा कि जैसे ही मरियम का नमस्कार उसने सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। Okay, then we also read about Zacharias who prophesies over his own son, John the Baptist. और हम देखें तो हम जकरिया के बारे में भी देखते हैं कि कैसे उसने अपने पुत्र के ऊपर भविष्यवाणी की। Okay, and we also saw that Simeon, who was in the temple when Joseph and Mary went with the baby Jesus for the ritual of circumcision, he also prophesied over the baby Jesus. जब यीशु मसीह बच्चा था और उसे मंदिर में लेकर गया, वहां पर एक उनको एक काम पूरा करना था वहां पर, तब किसने? शिमोन ने उस यीशु मसीह को देखकर भविष्यवाणी की थी वहां पर। Okay, so on and on like this, we see many people who prophesied. तो ऐसा हम नए नियम में बहुत सारे लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की। Now, when we look at the ministry of the Lord Jesus, अगर हम यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में भी देखें, we see that the people considered him as a prophet mighty in God. तो लोग उसको क्या समझते थे कि वो एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की सामर्थ्य में उतरा है। Okay, when the Lord Jesus was after his resurrection, when he was walking with those disciples in the road to Emmaus, और जब यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद वहां से यरूशलेम से जो इम्माउस की तरफ सड़क जा रही थी, वहां दो चेलों से मुलाकात करते हैं they were having this conversation, और वो बातचीत कर रहे होते हैं। and he says, do you not know that what people are saying about Jesus, who is a mighty prophet of God? तो उन्होंने वो उन चेलों से पूछता है कि क्या तुमने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, जो कि एक परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ भविष्यद्वक्ता रूप में आया है। Right? So the Lord Jesus actually prophesied about his own death and resurrection. और अगर हम यहाँ देखें तो यीशु मसीह ने क्या किया? अपने ही मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी की। Like he also told Peter, after I am resurrected, that you go and I will meet with you. और वो पतरस को बोलता है कि जब मैं जी उठूंगा उसके बाद मैं तुम्हें एक बार फिर मिलूंगा। Right? So he prophesied about his resurrection as well. तो वहां पर वो पतरस के सामने भी अपने जी उठने के विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं। In the New Testament church, अगर हम नई अहदनामे की कलीसिया या नए नियम की कलीसिया की बात करें, we see that there's a lot of prophecy happening. तो वहां पर जो प्रथम कलीसिया थी वहां बहुत सारी भविष्यवाणी हो रही थी। In fact, there were prophets in the church. और वो लोग कौन थे कलीसिया में? सारे के सारे भविष्यद्वक्ता थे। Right? Barnabas and Silas and all these people were considered as prophets. बरनबास को देखें, हम सिलास को देखें, वो लोग कौन थे? परमेश्वर के भविष्यवक्ता। And we see the ministry of the prophet in the New Testament church. और हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं की एक सेवकाई प्रथम चर्च के अंदर बहुत प्रबल रूप से काम कर रही थी। And this did not stop with just the New Testament church. और ये केवल प्रथम कलीसिया के साथ, जब पहली कलीसिया थी उसी के साथ खत्म नहीं हो गया, ये आगे चलता रहा। Right? Even in the church at Corinth or in the church at Ephesus. और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते अगर कुरिन्थ की कलीसिया को देखें, इफिसुस की कलीसिया को देखें, वहां भी इस तरह का कार्य हो रहा था। So there is the gift of prophecy and the prophets being raised up even in the contemporary church, even today. तो वहां भविष्यवाणी का वरदान लगातार काम कर रहा था और नए नए भविष्यवक्ता खड़े हो रहे थे। Okay, so the instruction for us is that we should not despise prophecies, but test all prophecies. जो पवित्र आत्मा से हमें निर्देश मिला है वो ये है कि हम किसी भी रीति से भविष्यवाणियों को तुच्छ न जाने। Okay, so what does a prophecy do in a setting, right? तो आपको क्या लगता है कि भविष्यवाणी जो की जाती है एक सभा के बीच में, उसका मकसद क्या होता है? उसको करने का कारण क्या हो सकता है? Now we're not talking about all the prophecies, right? We're not talking about all the prophecies. हम हर तरह की भविष्यवाणी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। But these are some things that the prophetic word brings to pass. Right? These are some things that the prophetic word accomplishes. तो यहाँ पर हम उस भविष्यवाणी के वचन की बात कर रहे हैं जो कोई कार्यों को पूरे करने के लिए बोला गया है। For example, it testifies the fact that Jesus is real. जैसा कि वो इस बात को पुख्ता करता है कि यीशु मसीह
सच्चे हैं या सत्य हैं। right? You remember yesterday I was sharing about how I spoke to that lady in the metro. कल आपको मैंने एक उदाहरण दिया था जहां मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मैंने एक महिला से मेट्रो के ट्रेन के अंदर बातचीत की थी। By the end of that conversation, it was clear to her that Jesus knew her and Jesus cared about her. और उस बात को खत्म करने के वो जो हमारी बातचीत खत्म हुई तब तक उस महिला को ये बात समझ आ गई थी कि यीशु मसीह उससे प्रेम करते हैं और उसके विषय में चिंता करते हैं। So it reveals the Lord Jesus. तो वो यीशु मसीह को प्रकट करता है जो बातचीत वहां हुई। And like we read just now, it brings strength, encouragement, comfort. और वो हमारे लिए, जैसा कि हम अभी लगातार पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए क्या लेकर आता है? उत्साह, उन्नति और शांति। It also motivates someone into their role of ministry. और कभी कभी वो किसी किसी को सेवकाई में अपने काम को समझने में, अपने दायित्व को समझने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है भविष्यवाणी का वरदान। It reveals the call and the potential that a person has and motivates them to do what God has called them तो to do. किसी किसी को जब भविष्यवाणी मिलती है तो वो उनको प्रेरणा देती है कि उनके ऊपर एक बुलाहट है, उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है और उनको सेवकाई में परमेश्वर चाहता है इस काम को इस्तेमाल में लेने के लिए। तो उनको क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हमारे लिए परमेश्वर ने एक योजना रखी है। Right. For example, in the Antioch church, we read this in Acts chapter 13, verse 2. अगर हम प्रेरितों के काम 13 के 2 में देखें तो वहां अंताकिया की कलीसिया में एक बात हुई थी। We see that there were all these people who were praying and fasting and they were seeking God. तो यहाँ पे एक झुंड था जो लगातार प्रार्थना और उपवास में विलीन था। And it says that the Holy Spirit spoke. और वहां लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा ने उनसे बात की। Right? God spoke and the people heard, received what he was speaking. और वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनसे बात की और उन्होंने परमेश्वर को खोजा और परमेश्वर की आवाज को सुना। Right? So what is prophecy again? तो अब हम भविष्यवाणी को किस रीति से परिभाषित करेंगे? Right? God speaking to man through man. Right? परमेश्वर मनुष्य के द्वारा मनुष्य से बात करता So है। here Holy Spirit is speaking. तो यहाँ हम देखते हैं पवित्र आत्मा बात कर रहा है He's speaking to all those people who are fasting and praying. और वो उन लोगों से जो उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से बात कर रहा है। And he was giving them a very specific instruction. और उनको बहुत ही बिल्कुल नियमित निर्देश दे रहा है। What was that instruction? He said, separate Paul and Barnabas to me. I want to send them on a task, an assignment. और यहाँ हम देखते हैं कि जब उन्होंने उपवास और प्रार्थना की तो उन्हें एक निर्देश मिला कि मेरे लिए किसको? स्तिफनुस को और Paul and Barnabas. Saul and Barnabas. पॉल को, पौलुस को और बरनबास को मेरे लिए अलग कर दो। Right. ये निर्देश उनको पवित्र आत्मा से बिल्कुल सटीक मिला। So it was a prophetic word. तो ये एक भविष्यवाणी थी जो उन्हें मिली थी। It was about their ministry. ये सेवकाई के विषय में थी। I'm sure that when Paul and Barnabas heard that, they must have been really encouraged. लेकिन जब हम देखते हैं कि जब पॉल और बरनबास ने ये सुना होगा तो उनको बहुत उत्साह हुआ होगा। Right? So it says that the others, all of them actually, they prayed some more and then they sent them out. और वहां लिखा हुआ है कि वो उन्होंने और अधिक प्रार्थना की पौलुस और बरनबास के लिए और फिर उनको अलग करके भेजा। Right? We see that in Acts chapter 13 and verse 3. अगर हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसकी 3री आयत में देखें, Right? They received the word, prophetic word. उन्होंने भविष्यवाणी के वचन को ग्रहण किया They fasted and prayed some more. और उन्होंने और अधिक उपवास और प्रार्थना करके Then they laid hands on them and sent them out. और उन पर हाथ रखकर उन्हें Right? विदा कर दिया। So probably they were testing the word. तो शायद वो क्या कर रहे थे? उस वचन को परख रहे They थे। just wanted to be sure. वो एकदम निश्चिंत होना चाहते थे कि जो हम सुन रहे हैं वो सही है And then they sent them out. और तब उनको वहां से भेजा, विदा किया। So the prophetic word also reveals what kind of call or potential that God has placed in a person. तो ये जो भविष्यवाणी का वचन है वो किस चीज को उजागर करता है कि एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने किन गुणों को डाला है, किस क्षमता को डाला है और कैसे परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता है सेवकाई में। Right? The Lord Jesus declared over Simon Peter. जैसे कि यीशु मसीह ने शिमोन पतरस के ऊपर एक भविष्यवाणी की। He said, you are Simon, son of Jonah. उसने कहा कि तू शिमोन है, बार जोना का पुत्र है। Right? Which means Simon means a reed which can be easily blown by the wind.
और शिमोन का मतलब है एक ऐसी डाली जो आसानी से हवा से खसक जाती है। But he says, you shall be called Cephas or Peter, which means a rock or a stone. और तुम आने वाले समय में एक नए नाम उसको दिया, वो था सीफास, और वो बोला कैफा। सीफास हिंदी में है कैफा, और ये बोला कि तुम एक, और इसका मतलब है पत्थर। Right? So which means you're right now, this is how you are, like a reed. Wherever the wind blows, you are being shaken. तो वहां यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि पतरस, तू अभी कैसा है? एक ऐसी डाली के समान है जो जहां हवा चलती है वहीं पे हिलता डुलता वहां चलता रहता है। But you shall be a stone, लेकिन आने वाले समय में तू एक पत्थर के समान हो जाएगा, strong. मजबूत हो जाएगा। And that is how it was. That is what happened. और ऐसा ही हम देखते हैं कि आने वाले समय में इसी प्रकार का एक कार्य पतरस के जीवन में हुआ। Years later, when Paul meets Peter and John and all these people, James and John, कई सालों के बाद या कई वर्षों के बाद हम देखते हैं पतरस को और अन्य चेलों को, right? Paul refers to them as pillars of the church in Jerusalem. तो पौलुस उनको क्या बोलता है? कलीसिया के स्तंभ कह के पुकारता है। Right? A pillar is strong, it has to hold the structure. तो अगर हम इन खंभों को देखें तो इन्हें कैसा होना पड़ेगा? मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी जो बिल्डिंग है उसको पकड़े हुए है। Right? If a pillar is flexible, then the whole thing will come down. Right? तो अगर ये जो स्तंभ है ये ढीले ढाले हैं तो पूरी जो बनाई हुई इमारत है वो नीचे आ जाएगी Right? ढहकर। So Paul, looking at all these people, he says, I met these people, Peter and others, that they seem to be like pillars in the church of Jerusalem. तो एक समय आता है जब पॉल उनके बारे में ऐसा कहता है कि जब मैं पतरस और अन्य चेलों से मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये कलीसिया के मजबूत स्तंभ है। So Simon had become Peter. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से शिमोन पतरस बन गया। Okay. The prophetic word also brings confirmation to what God has already spoken to us. अगर हम भविष्यवाणी को देखें तो भविष्यवाणी क्या करती है? परमेश्वर के बोले हुए वचन को पुख्ता करती है कि जो हमने सुना है वो सही है। Right? God already speaks to us and calls us. हो सकता है परमेश्वर ने हमसे पहले ही बात की और हमें बुलाहट दी है। And the prophetic word brings confirmation or more proof that it is indeed God who has called us. तो वो जो भविष्यवाणी का वचन हमारे पास आता है वो इस चीज की पुष्टि करता है कि जो परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत रूप से कहा था वो सही है। Right? It could be about various topics. It could be about anything in our lives. ये जीवन के किसी भी क्षेत्र के विषय में हो सकता है, हमारे जीवन के अलग अलग बातों के विषय में हो सकता है। Right? I remember I shared about how this lady was praying on the phone and he said, God is calling you into ministry. He's making you a minister of God. जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक उदाहरण देकर बताया था कि एक महिला जो मुझसे फोन पर बात कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें संपूर्ण सेवकाई के लिए बुलाया है। See, that was in the month of September. Okay? और ये करीब सितंबर के महीने की बात रही होगी। I realized that every September there would be a confirmation of that prophetic word. और उसके बाद मैंने देखा कि हर बार जब सितंबर आता तो परमेश्वर उस वचन की पुष्टि करके मुझे याद दिलाता। God was confirming what was already spoken over my life and he was bringing confirmation. और परमेश्वर क्या करता कि वो वचन याद दिला के उस बात को पुख्ता करता कि जो कुछ मैंने भविष्यवाणी के वचन के द्वारा तुम पर बोला गया है वो सत्य है। Some random people, I'll just go to a meeting and then they'll pray over me and then say, hey, God is calling you into ministry. और मैं ऐसे ही घूमते घामते कभी किसी मीटिंग में चला जाता तो वहां मुझे कोई मिल जाता जो मुझ पे प्रार्थना करके कहता है कि सुनो, तुम्हें परमेश्वर बुला रहा है सेवकाई में, पूर्ण सारे दिन मतलब पूर्ण सेवकाई में बुला रहा है। And the first time I came to All People's Church, और जब पहली बार मैं ऑल पीपल्स चर्च में आया, there were very few people, right? वहाँ बहुत कम लोग थे, I think some 2 families were there. शायद 2 ही परिवार रहे होंगे। And I came as part of the worship team to lead worship for a special meeting. और मैं एक स्पेशल मीटिंग में एक वर्शिप लीडर की तरह पे आराधना करने के लिए वहां पर आया। And in fact, in that meeting, the worship team was more than the people attending the meeting. तो जब मैं वहां आया तो वो वर्शिप टीम के लोग ज्यादा थे और जितने लोग मीटिंग में बैठे थे वो कम थे। Right? But the fact is that when the speaker, not Pastor Ashish, when the speaker rose up to speak, he gave a prophetic word. और जब वहां पे जो स्पीकर थे, जो वहां पे उस मीटिंग की अगुवाई करने वाले एक सेवक थे,
वो जब उठे, वहां पे पास्टर आशीष की बात नहीं कर रहे हैं, कोई और सेवक थे, उन्होंने उठकर ये भविष्यवाणी मुझ पर कर दी So he called me and my wife forward, और उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को सामने बुलाया and he looked at me and he said, God is calling you to be a pastor. और उन्होंने मुझे देख के कहा परमेश्वर तुम्हें पासबानी करने के लिए बुलाहट दे रहे हैं। So that's the first time somebody is saying, God is calling, being very specific and saying, God is calling you to be a pastor. और वहां पे उन्होंने बहुत सटीक बात बोली कि तुम्हें परमेश्वर खास तौर पर पासबानी करने के लिए बुला रहे So हैं। till then, it was about God is calling you to ministry. तब तक ये था कि परमेश्वर, अब तक मैं सुन रहा था कि परमेश्वर मुझे सेवकाई में बुला रहे हैं, But then when I came to All People's Church, it was very specific. Okay, God is calling you to be a pastor. और जब मैं वहां पर आया आराधना करने के लिए, तब मुझे ये कहा गया कि तुम्हें पास्टर बनने के लिए परमेश्वर बुला रहे हैं। Right? And I think 4 or 5 years after that, और उसके 4-5 साल के लगभग के बाद, I found myself serving in All People's Church. और उसके बाद मैंने अपने आप को कहाँ पाया? ऑल पीपल्स चर्च के अंदर पास्टरशिप करते हुए। And not as a pastor, अच्छा, ओके। but in सेवा करते हुए। administration. I was just serving in administration. और मैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के काम को करते हुए अपने आप को देखता था। But 4 years after that, stepped into the pastoral role. और उसके भी 4 साल बाद मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक पासबान के कार्य में वहां पर सेवा दे रहा Right. So हूँ। the prophetic word brings confirmation to what is already spoken by God to us. तो अगर हम देखें तो भविष्यवाणी का वचन हमारे ऊपर बोले गए परमेश्वर के वचन की पुष्टि करता है। Right. And the prophetic word also comes to us to pray for another person. और भविष्यवाणी का वचन जो हमारे पास आता है वो इसलिए भी आता है कि हम अन्य व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। It's prophetic intercession. और इसको कहते हैं भविष्यवाणी की मध्यस्थता। Right. So God, who knows the hearts of people, who knows the needs of people, he gives a prophetic leading to pray for others. तो परमेश्वर जो लोगों की आवश्यकताओं को जानता है, उनके मन के व्यथा को जानता है, वो मनुष्यों को खड़ा करता है कि वो लोग भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा अन्य लोगों के ऊपर प्रार्थना करके उन्हें शांति दें। Right. It could also be like when people are more mature in the prophetic ministry, like prophets. It could also be to bring correction to people's lives. तो कभी कभी जो लोग भविष्यवाणी के वरदान में परिपक्व हो जाते हैं बहुत समय तक इस वरदान में, तो परमेश्वर उन लोगों को अन्य लोगों के जीवन में चेतावनी के रूप में वचन भेजने के लिए भी इस्तेमाल करता है। Right. It could also be to bring insight into scripture. हो सकता है कि वो वचन आपको वचन की गहराई में ले जाने के लिए कोई वचन हो। Right, to alert people about what is going to happen in the natural, so that they can prepare themselves, like famine or any weather situation. और हो सकता है कि प्राकृतिक रूप से कोई ऐसी आपदा आने वाली है, कोई ऐसी तैयारी की आवश्यकता है, तो भविष्यवाणी का वचन प्राकृतिक रूप से भी लोगों को तैयार करता है आने वाले समय में होने वाली किसी घटना के लिए। It could also be to reveal the secrets in their heart, so that people are drawn to God. और एक और काम होता है भविष्यवाणी के वरदान से कि लोगों के मन के अंदर जो भेद छिपे होते हैं, जो कोई नहीं जानता, परमेश्वर उनको बोलकर इस बात को प्रकट करता है कि मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूं, और उन्हें उन्नति करता है। Like a similar incident happened in my life when I was traveling तो once. एक बार इस तरह की घटना मेरे साथ हुई जब मैं यात्रा कर रहा था। So I was coming back from a short-term Bible college. After teaching, I was coming back from Varanasi. तो मैं वाराणसी में ही STBC यानी कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का एक अपना सेशन पूरा करने के बाद वापस यात्रा करके बैंगलोर आ रहा था। And so in that flight, a couple came and sat next to me. Right? और जब मैं फ्लाइट में था तो मेरे पास में एक जोड़ा आकर बैठा। So I was asking the Lord, what should I tell them? Is there something that you want me to speak to them? तो तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछने लगा कि परमेश्वर आप मुझे बताइए कि मैं इन दोनों को क्या बोलूं। So God showed 2 things, right? तो मेरे को परमेश्वर ने 2 चीजें दिखाई। One was, I thought it looked like a tennis racket, tennis racket. तो मेरे को जो परमेश्वर ने दिखाया वो कुछ टेनिस रैकेट के समान दिखने वाला एक वस्तु थी। Okay, so I thought, okay, it's strange. तो मुझे बड़ा अनोखा लगा। Then another picture was that of a mic, like it's an old mic. और जो अन्य चित्र मुझे परमेश्वर ने दिखाया वो एक पुराने जमाने का माइक था। And there was fire all around the mic. और उस माइक के चारों तरफ मैंने आग देखी। Like 2 pictures. तो मैंने 2 चित्र देखे। Then as usual, I was nervous.
तो मैं बहुत ज्यादा घबराहट में था Should I tell them? Should I not tell कि them? मैं उन्हें बताऊं या मैं उन्हें नहीं बताऊं। So I was waiting for a long time. तो मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा। Then they said, please fasten your seat belts. We are going to land. तो उन्होंने कहा कि अब अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम नीचे उतरने वाले And हैं। I said, I have to tell them now. तो Right? मैंने सोचा अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। So I turned to the husband who was sitting next to me तो मेरे पास जो पुरुष बैठे थे उनसे मैंने बोला, and I asked him, do you play tennis? मैंने पूछा क्या आप टेनिस का गेम खेलते हैं? He said no. तो उन्होंने कहा नहीं। I was very disappointed. तो मैं बहुत निराश हो गया। Then I thought I should explain to him. तो So मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें बताऊं। then I told him, the same like I said, when you entered into the flight, I started praying to the Lord Jesus. I asked Jesus to show me something. तो मैंने इनको ये बताया कि जैसे ही आप फ्लाइट के अंदर आए, एरोप्लेन के अंदर आप चलकर आ रहे थे, उस समय मैंने एक प्रार्थना की यीशु मसीह से और मैंने पूछा कि आप मुझे इनके विषय में कुछ बताइए। So I thought what I saw was like a tennis racket. तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने देखा था शायद वो एक टेनिस रैकेट के जैसा एक चित्र था। So that's why I asked you. तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। But then he said, then we just talking. और तब हम ऐसे ही बात करने लगे आगे। Then I told him, hey, I saw something else. और मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक और चीज देखी। Are you a public speaker? क्या आप लोगों से बात करने वाले एक वक्ता हैं? Do you do that as a profession? क्या आप वक्ता का कार्य करते हैं? He said, yes. उसने बोला हाँ, मैं वही काम करता I'm हूँ। a trainer. तो मैं लोगों को प्रशिक्षित करता And हूँ। I train soft skills like, speech and accent and all that. So I train people. तो मैं लोगों को अच्छा बोलने के लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए लोगों को सिखाता हूँ। In other words, also a motivational speaker. तो वो एक प्रेरणा देने वाला वक्ता था। So I said, hey, this is what I saw. तो मैंने उन्हें खुश होकर बताया कि यही मैंने देखा I तुम्हारे saw बारे a में। mic. तो मैंने एक माइक देखा I saw fire around it. और मैंने उसके चारों तरफ आग देखी। But this is what I sense. बट जो मुझे लग रहा है मैं बताता हूँ। That even as you speak, जैसे आप बोलेंगे that people will be blessed. तो लोग आशीषित होंगे। That God will use you and in your training to bring encouragement to people and to bless people. और जब मैंने उनको ये बोला कि जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे, आपके द्वारा उन्नति प्राप्त करेंगे और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है लोगों के जीवन में उत्साह को वापस लाने में। And he was very surprised. तो वो बहुत अचंभित हो गया। He said, wow, this is fantastic. वो बोला अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। I've never heard anything like this before. मैंने कभी भी इस तरह की बात पहले नहीं सुनी थी। So I said, it's Jesus. तो मैंने उसको बोला पता है क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह की वजह से हुआ है। I don't know anything about you, मैं तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं जानता हूँ, but Jesus knows. बट यीशु मसीह जानता है। Then I said, I guess I was wrong about the tennis racket. तो बोला हो सकता है कि मैं टेनिस रैकेट को लेकर थोड़ा सा गलत हो गया। Then he said, no, तो उसने बोला नहीं नहीं, my wife here, मेरी जो पत्नी है she plays badminton. वो बैडमिंटन खेलती है In fact, she played for the state or district, something he said. और वो राज्य स्तर पर बैडमिंटन खेलने वाली एक खिलाड़ी है। So then he introduced me to his wife. तब उन्होंने अपनी पत्नी से मेरा परिचय कराया। And I said, ma'am, I worship Jesus. तो उन्होंने पत्नी से भी यही बात बोली कि मैं यीशु मसीह का आराधक हूँ। And this is what I saw when I prayed. जब मैंने प्रार्थना की तो ये एक चित्र मेरे सामने आया। So I asked her, I don't know what you think about Jesus. तो मैंने उनसे पूछा मैं नहीं जानता हूँ कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या विचार रखते हैं। But she said, oh, no, we respect Jesus. We honor Jesus. तो उसने बोला नहीं नहीं, हम यीशु मसीह की आदर करते हैं। Both of them are Hindus. हम थोड़ा बहुत जानते हैं और उनका आदर मान करते हैं। No, both of them are Hindus. वो हिंदू हैं, But she said, I studied in a convent लेकिन हमने एक कॉन्वेंट में पढ़ाई की है and we respect the teachings of Jesus. और इसलिए हम यीशु मसीह की शिक्षाओं का आदर करते हैं। So I said, the Lord Jesus knows about you. तो मैंने उनसे बोला कि यीशु मसीह आपके बारे में जानते हैं He knows what you're doing. और वो ये भी जानते हैं कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। And both of them were like, wow, nothing like this has happened to us in our life before. तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अद्भुत बात है, इससे पहले हमारे जीवन में हमने कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। So I said, Jesus is real. तो मैंने उनको बोला आपको पता है यीशु मसीह सच्चे हैं, Get to know him. इसलिए आप उन्हें जानने की कोशिश And कीजिए। they said, yes, we तो will. उन्होंने कहा जरूर हम करेंगे I invited them to church. और मैंने उन्हें अपने कलीसिया में न्योता दिया। I said, if you have time, whenever you think, please visit us. तो जब भी आपके पास समय हो तो आप प्लीज हमारे कलीसिया में आके हमारे साथ जुड़िए। Right? I never saw them after that. हालांकि मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, But the fact is, their hearts were open
to the Lord Jesus. लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके दिल यीशु मसीह के लिए खुले थे They knew that Jesus is Lord. और वो जानते थे कि यीशु प्रभु है That he knows what everybody is doing in their lives. और वो समझ गए कि यीशु मसीह अच्छी तरह जानता है लोगों को और वो क्या कर रहे हैं वो भी जानता है. Right? So that is what the prophetic word does. तो यही है जो भविष्यवाणी का वचन काम करता है. It reveals that Jesus is Lord. और वो ये प्रकट करता है कि यीशु मसीह कौन है. Right? कौन है. He's Lord. प्रभु है. And also the fact that whatever is happening in their lives, और वो जानता है कि लोगों के जीवन में क्या कुछ चल रहा है. right? Information that you and I may not know, हो सकता है वो जानकारी मुझे और आपको ना हो. because we might be meeting them for the very first time. हो सकता है हम उनसे बहुत पहली बार मिल रहे हों. But the Lord Jesus knows. बट यीशु मसीह सब कुछ जानता है. And when they realize that the Lord Jesus knows, they open their hearts to the Lord. और जब उनको ये बात समझ आए कि यीशु मसीह उनके बारे में इतना कुछ जानता है तो उन्होंने अपने दिल को यीशु मसीह के लिए Right? खोला. Okay. So we'll take a break and then we'll come back. और अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर से मिलेंगे.